Greetings 11th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the second book of 11th class, that is political theory. Right? In that we are going to start first chapter today. Okay, we have completely understood the first book, that is Constitution, Indian Constitution at Work, and today we are going to start the second book, that is political theory. And the first chapter of the book, that is political theory and introduction. Basically in this book what you are going to study, you will be able to understand the ideas of different political thinkers, the ideas of different, you can say, those people who frame the political science, whose ideas we are studying, right? All those words which you are using in your everyday life, for example liberty, equality, justice, fraternity, all these words which you are using but you do not know the exact meaning of those terms. So in this particular book we are going to deal with those kind of words, right? The chapter name you will be able to see, there is the name of chapter of one word only, right? But you will be able to get a lot of things from this particular book, and the most important thing, it will make you rational person. You will be able to understand the base of everything, right? So let us start now. The chapter number 1 is political theory and introduction. In this chapter you are going to study what is political theory, what do we study in it, what is the importance, right? Nature, scope, all these kind of things related to political theory we are going to discuss in this particular chapter. Fine. अब देखो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्या गिवन है, अनदर बुक्स टू मेमोराइज, मतलब आपको एक और बुक पढ़नी है. And देखो, if we only we could talk about the things that concern us, तो क्या हो अगर हम सिर्फ उन्हीं बारे में बातें करें जिनके बारे में हमें कंसर्न है, राइट? उसके अलावा वेट एंड सी, द क्लास विल बी डिफरेंट, ये क्लास कुछ डिफरेंट होगी, दिस क्लास विल बी डिफरेंट. लेट्स टर्न ऑन पेज नंबर 8 एंड रीड द बुक बॉक्स ऑन सॉक्रेट्स. अब ये सॉक्रेट्स कौन है, एरिस्टोटल कौन है? दीज आर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, थिंकर्स, right? You will be able to understand their ideas completely after the reading of this book. Okay, I do not know, but I like the way he reveals inconsistencies in the view expressed by others. Socrates के ideas क्या हैं जो आप पेज नंबर 8 पे रीड करने वाले हो? ओके, कौन थे वो, क्यों उन्होंने आइडियाज दिए, कैसे स्टार्टिंग होती फिर पॉलिटिकल साइंस की, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस, राइट? अब देखो, दिस इज रियली डिफरेंट, हु इज सॉक्रेट्स, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करते हो. ओके, लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ों का बेस हम लोग स्टडी करेंगे, दैट फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, राइट? मतलब कहाँ से हमारा जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस, दैट यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड वन बुक विच इज बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल साइंस. तो एक्चुअल में वो है क्या, राइट? ओरिजिन, इम्पॉर्टेंस, राइट? वो सारी की सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करने वाले हो. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. पॉलिटिकल थियरी. ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स. जब आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हो, आप लोगों ने देखो, आपने कोटेशन बहुत बार सुनी होगी, मैन इज सोशल एनिमल, सुनी होगी ना? और ये फेमस कोटेशन किसकी है? दैट इज ऑफ एरिस्टोटल, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना? तो ये आइडियाज जो आप लोग डेली लाइफ में आप कुछ वर्ड सुनते हो, कुछ लाइन सुनते हो, तो उनका ओरिजिन कहाँ से है वो आप स्पेशलिस्ट बुक में रीड करने वाले हो, राइट? अब देखो, ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स. हम दो रिस्पेक्ट्स में डिफरेंट है, यूनिक है. कैसे? दे पोजेस रीजन एंड द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या करते हैं, वो रीजन दिखाते हैं, और उनके पास एबिलिटी है, वो अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? They also have the capacity to use language and communicate with each other. एक तो वो अपने एक्शंस के थ्रू अपनी एबिलिटी को ना शो कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? और दूसरी क्या चीज़ है, दैट वी कैन कम्युनिकेट, वी आर एबल टू यूज लैंग्वेज, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ऑल्दो जो आपके एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, किसी न किसी लैंग्वेज में तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं, राइट? बट ह्यूमन बीइंग की आपकी क्या कैपेसिटी कि हम लोग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires, right?
They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. अगर आप एनिमल्स को देखते हो, बर्ड्स को देखते हो, तो मे बी ऑल दो उनकी लैंग्वेजेस में वो बात करते होंगे, बट इवन देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो एक लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग ओनली. राइट, हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारी डिजायर्स क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं, वी कैन एक्सप्रेस ऑल दोज थिंग्स. राइट, दे कैन शेयर देयर आइडियाज, हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट दे कंसीडर टू बी गुड एंड डिजायरेबल, क्या डिजायरेबल है, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ. राइट, उसके अलावा पॉलिटिकल थियोरी हैज इट्स रूट्स इन द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ. और जो पॉलिटिकल थियोरी है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी बुक बेस्ड है, वो क्या है, इसकी रूट्स कहाँ पर है, ट्विन एस्पेक्ट्स में. जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, उसकी ट्विन एस्पेक्ट में उसकी रूट्स आपको देखने को मिलती है. It analyzes certain basic questions such as how should society be organized. इसमें आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. राइट, मतलब कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. ओके, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है. व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट सबसे अच्छी है. देखो, गवर्नमेंट के टाइप्स आप लोगों ने बहुत सुने होंगे ना, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है. राइट, तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है. डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, जब आप फ्रीडम की बात करते हो उसके साथ साथ आप कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज की भी बात करते हो, तो क्या जो लॉज हैं वो आपकी फ्रीडम को लिमिट करते हैं या आपको एंजॉय करने में हेल्प करते हैं. कई बार हमें लगता है ना कि ये रेस्ट्रिक्शंस लग रही है हमारे ऊपर. फॉर एग्जांपल हेलमेट है ना, आपको क्या लगता है कि वो हमारी बाइक चलाने की फ्रीडम के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शंस है. अगर आपको कोई बोलता है ना हेलमेट पहनो, बट क्या वो आपकी फ्रीडम के ऊपर लिमिट है या फिर वो आपको आपकी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए वो चीजें हैं. आप रैशनैलिटी के बेसिस पे चीजों को डिस्कस करना शुरू करोगे आफ्टर रीडिंग दिस बुक. राइट, व्हाट डज द स्टेट और इट्स सिटीजन्स, अब स्टेट अपने सिटीजन्स को क्या क्या प्रोवाइड करवाता है. व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन, और हम एक सिटीजन होने के नाते हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या एक दूसरे से गेन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें. राइट, आपकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ आप रीड करने वाले हो. फाइन, क्लियर इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब जब आप आते हो पॉलिटिकल थियरी एस्पेक्ट पे, क्या है, इट एग्जामिन्स क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ. जब आप पॉलिटिकल थियरी की बात करते हो ना, तो ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को एग्जामिन करता है. राइट, इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जामिन करता है. देखो, जो आपने क्वेश्चंस पढ़े, कैसी सोसाइटी होगी, कैसे वो ऑर्गेनाइज होगी, कैसी गवर्नमेंट बनेगी, क्यों गवर्नमेंट की नीड होती है आपको, क्या फ्रीडम हमारी, जो हमारी लॉज हैं, क्या वो हमारी फ्रीडम को लिमिटेड कर देते हैं, वो सारी की सारी चीजें. ओके, तो जो पॉलिटिकल थियरी है स्पेशली वो एग्जामिन करती है क्वेश्चंस को, इसी तरीके के क्वेश्चंस को, एंड सिस्टमैटिकली थिंक्स अबाउट द वैल्यूज दैट इन्फॉर्म पॉलिटिकल लाइफ. और वही सिस्टमैटिकली उन सारी चीजों के बारे में सोचती भी है कि कैसे कैसे वैल्यूज हैं पॉलिटिकल लाइफ की, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करती है. वैल्यूज कैसी, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस. देखो, सारे टर्म्स आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन आप जब आप पढ़ोगे ना कि फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था. राइट, इक्वालिटी एक्चुअल में क्या है, जस्टिस. देखो, अगर आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि पनिशमेंट मिल रही है, अगर बॉयज को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल जाए, गर्ल्स को कम मिल जाए, तो बॉयज क्या बोलेंगे, वी वांट जस्टिस. बट अगर उनसे पूछ लिया जाए जस्टिस होता क्या है, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन. राइट, मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, बट इवन देन वी कांट एक्सप्रेस देम, वी कांट एक्सप्लेन देम. राइट, इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड द अदर रिलेटेड कंसेप्ट. इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट आप उनको एक्सप्लेन करना सीख जाओगे. It clarifies the existing definition of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. और ये क्या करती है, ये क्लैरिफाई करती है. किस चीज को क्लैरिफाई करती है, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को. राइट, जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है ना, अब देखो डेफिनेशन आई कहां से, बिकॉज सम ऑफ द पीपल हैव थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ना. जैसे हम लोग जस्टिस पढ़ने हैं, तो किसी ना किसी ने तो जस्टिस को वो डिफाइन किया होगा ना, जो हम रीड करेंगे, तो आप उन सारी की सारी चीजों के कंसेप्ट्स को समझोगे कि आज जो आप वो डेफिनेशन रीड कर रहे हो, तो उस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वही डेफिनेशन एक टाइप से एक्सेप्टेबल है. राइट, ऑफ दीज कंसेप्ट बाय फोकसिंग ऑन सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें आप क्या स्टडी करोगे, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑल्सो, जिसमें आप कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स स्टडी करते हो.
It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in. उसके अलावा ये भी एग्जामिन करेगी क्या, द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट. वो एक्सटेंट को भी डिस्कस करोगे जिसके थ्रू आप देखते हो कि फ्रीडम और इक्वालिटी सच में प्रेजेंट है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, राइट, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो. इक्वालिटी है वहां पे, लिबर्टी है वहां पे. एवरीडे लाइफ सच एज स्कूल्स, शॉप्स, बसेस और ट्रेन्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस. हर दिन आप देखते हो ना, जैसे कि स्कूल्स देखते हो आप, शॉप्स देखते हो, बसेस देखते हो, ट्रेन्स देखते हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस देखते हो. तो आप ये रीड करने के बाद ना ये चीजें समझोगे कि क्या वो इन पब्लिक प्लेसेस पे वो चीजें आपको मिल पा रही हैं. अगर मिल पा रही तो किस वे में आपको मिल पा रही, यू विल बी एबल टू थिंक अबाउट ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट. At an advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions and policy practices must be modified to become more democratic. और सबसे important चीज़ है, जो definitions आप लोग read करते आए हो, क्या वो definition sufficient हैं? Suppose आपने justice के बारे में कुछ read कर लिया, राइट तो जो जस्टिस क्या आप लोग सोचते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, क्या वो सफिशिएंट है? जो थिंकर्स ने बोलते क्या वो सफिशिएंट है? और क्या आज के टाइम में आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट. जो आपने गवर्नमेंट के बारे में सुना है, क्या वो सफिशिएंट है? क्या ब्यूरोक्रेसी जो आपकी वर्क करती है, सिविल सर्वेंट्स जो आपके वर्क करते हैं, क्या वो एडिक्वेट है, राइट. या फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है आपकी सारी चीजों को और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, राइट. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and access the political events of our time. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉलिटिकल थियरी आपको क्या बताती है? पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में बताती है, राइट. पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में आपको बताती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, आप पॉलिटिकल इवेंट्स को क्या कर सकते हो, हमारी टाइम के पॉलिटिकल इवेंट्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. मतलब आप क्या सोचोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप पॉलिटिकल थियरी स्टडी करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इस पॉलिटिकल थियरी का ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने सिटीजन्स को क्या बनाएगी, थिंक रैशनली. मतलब ये है आपकी पॉलिटिकल थियरी को रीड करने का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक. जब भी आप पॉलिटिकल थियरी रीड करते हो ना, क्यों रीड करते हो? देखो आप इतने लोगों के आइडियाज पढ़ते हो तो इट मीन्स यू विल बी एबल टू डेवलप योर आइडियाज ना, कि उन्होंने ऐसा बोला. आप अपनी वर्डिंग्स को प्रूफ कर सकते हो विद द आइडियाज ऑफ दोज थिंकर्स. आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं रैशनल बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर पाते हो. तो यही पॉलिटिकल थियरी ही है जो अपने सिटीजन्स को क्या बनाती है, रैशनल बनाती है, राइट. पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनके रिगार्डिंग और आपकी पॉलिटिकल इवेंट्स तक आपकी एक्सेस को इंश्योर करती है, वो है आपकी पॉलिटिकल थियरी. समझ आया? तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप लोगों को क्या समझ आया कि जो आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ना कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, कुछ वैल्यूज आप अंडरस्टैंड करते हो, तो क्या एक्चुअल में वो चीजें आप समझ पा रहे हो, वो आप एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हो कि उनका रियलिटी में मीनिंग होता क्या है. और इसके अलावा आप क्या देखोगे, जो हमारी डेफिनेशंस हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने दी हैं, फिलोसोफर्स ने दी हैं, क्या वो सफिशिएंट है या फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ और ऐड करने की रिक्वायरमेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्यों रीड करोगे इस पर्टिकुलर बुक को, क्योंकि आपको रैशनल बनाएगी, आपको रैशनल वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी चीजों को. समझ आया? क्लियर? अब और क्या रीड करोगे आप? इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी इट. इस चैप्टर में आप यही सारी चीजें स्टडी करोगे कि पॉलिटिकल थियरी एक्चुअल में है क्या, और फिर हम इसको स्टडी क्यों करते हैं और क्यों हमें इसको स्टडी करना चाहिए. That is the crux of the chapter that we are going to study. Fine. अब आ जाओ जो क्वेश्चन आप लोगों ने, देखो let us debate what is politics. देखो जब आप politics वर्ड सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? Sometime you can think ना, एक नेगेटिव टर्म आप लोग सोचते हो, do not play politics with me, है ना. It means क्या है, ये एक नेगेटिव टर्म, राइट. तो एक्चुअली वो पॉलिटिक्स है क्या? Let us have a look over that. अब देखो, you would have noticed that people have different ideas about what politics is. मतलब लोगों को नहीं पता होता एक्चुअली में पॉलिटिक्स क्या है, बट इवन देन दे विल बी डिबेटिंग. उनके डिफरेंट व्यूज होंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टर्म ओनली.
Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it's a kind of public service. अब देखो, लोग जिस एस्पेक्ट से कनेक्टेड होते हैं वो उसी एस्पेक्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. वो ये बोलेंगे जो जिस एस्पेक्ट में है वो उसी के अकॉर्डिंग तो उस चीज को डिफाइन करेगा ना. अब जैसे पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में अगर किसी आप लीडर से, पॉलिटिकल लीडर से पूछोगे तो उसका मतलब क्या है. पॉलिटिक्स एक प्रोसेस होगी ना जिसके थ्रू आप इलेक्शंस हेल्ड कर सकते हो, है ना, और कुछ ऑफिसेस को होल्ड करते हो. तो वो लोग क्या बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स दे विल बी सेइंग कि ये एक टाइप की पब्लिक सर्विस है, क्योंकि इसके थ्रू आप उन सर्विसेज को गेन करते हो जिसके थ्रू आप पब्लिक को सर्व कर सकते हो. तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे दे कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस, है ना. सम अदर एसोसिएट पॉलिटिक्स विद मैनिपुलेशन एंड इंट्रिग्यू अंडरटेकन टू परस्यू एम्बिशंस एंड सेटिस्फाई वांट्स. कुछ लोग क्या मानेंगे, मैनिपुलेशन. कुछ लोग इसको एसोसिएट करेंगे मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस, जो चालाकी से कुछ चेंजेस हो जाएं, है ना. आप क्या कर सकते हो, कुछ अपने एम्बिशंस को, अपने आप जो आप चाहते हो ना, वट एवर यू वांट, आप अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्योंकि कुछ क्या करते हो, इंट्रिग्यू करते हो, है ना. मतलब जब आप कुछ अपने एम्बिशंस को परस्यू करने के लिए, अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ मैनिपुलेशंस करते हो, मतलब वही चालाकी वाली चीजें, वो आपकी पॉलिटिक्स में आ जाती हैं. गेटिंग माई पॉइंट. मतलब देखो, हर एक पर्सन खुद को पॉलिटिक्स के साथ अलग वे में कनेक्टेड फील करता है. लीडर्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कुछ और है, जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स कुछ और है. सम ऑफ द पीपल वो क्या सोचते हैं कि क्या एक टाइप की मैनिपुलेशन है, राइट, जिसमें आप क्या करना शुरू कर देते हो, जिसमें आप उस चीज को कंप्लीट करना शुरू करते हो जो आप चाह रहे हो. आप मतलब अपने आइडियाज को, अपनी डिजायर्स को, अपनी विल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि सामने वाला पर्सन सोचे कि ये मेरा ही बेनिफिट है. वो मैनिपुलेशंस टाइप की चीजें, चालाकी से जब आप दूसरे से अपनी बात बना लेते हो, है ना. कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इट इज पॉलिटिक्स, राइट. अ फ्यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज व्हाट पॉलिटिशियंस डू. और जिसको कुछ नहीं पता उसको क्या पता है कि जो पॉलिटिशियन करते वही पॉलिटिक्स है, राइट. If they see politician defecting from parties, making false promises and tall claims, manipulating different sections, pursuing personal or group interest recklessly, in worst cases stopping in crime, they link politics with scams. Scam क्या हो जाता है, घोटाला, है ना. क्योंकि अब कुछ लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि पॉलिटिक्स से क्या लोग फील करते हैं, कुछ नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिशियन करते हैं ना वही पॉलिटिक्स है, दैट्स इट. क्योंकि उनको नहीं पता पॉलिटिक्स एक्चुअल में है क्या, राइट. और जब तक आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको भी नहीं पता, आपके अकॉर्डिंग भी यही पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन करते हैं ऑफ कोर्स वही पॉलिटिक्स है, राइट. अब देखो, अब जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, अब देखो जैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज को वो लोग एक को छोड़ के दूसरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो डिफ्लेक्ट करते हैं लोगों से. क्या करते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे झूठे प्रोमिस करते हैं, है ना, बड़े बड़े क्लेम्स कर देते हैं. चालाकी से क्या करते हैं, डिफरेंट सेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से भिड़वाने की कोशिश करते हैं, है ना. परस्यूइंग पर्सनल और ग्रुप इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं एक टाइप से परस्यू करेंगे रेथलेसली, मतलब ब्रेकलेसली, अपनी सारी चीजों को एक टाइप से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड इन वर्स्ट केसेस स्टॉपिंग टू क्राइम, मतलब आप क्राइम में इंडल्ज देखते हो उन लोगों को, राइट. दे लिंक पॉलिटिक्स विद स्कैम्स. ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि जब जिन लोगों का मेंटालिटी है ना कि पॉलिटिक्स वही है जो पॉलिटिशियन करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इन सिंपल टर्म्स पॉलिटिक्स क्या है, जो स्कैम से कनेक्टेड है. स्कैम घोटाला, है ना, जो घोटाले करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ी करते हैं, वो होती है आपकी पॉलिटिक्स. ये किनका व्यू है, जिनको नहीं पता पॉलिटिक्स क्या है, वो पॉलिटिक्स को कनेक्ट करते हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ, राइट. सो प्रिविलेंट इन दिस वे of thinking that when we see people in different walks of life trying to promote their interest by any means possible, we say that they are playing politics, है ना. आप लोगों ने क्या सुना है, मतलब चालाकी से, वो तो बड़ा चालाक है ना, बड़ी राजनीति खेल गया मेरे साथ. आप लोगों ने टर्म सुनी होंगी. क्यों, क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि हमारे सभी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट को किसी भी वे में कंप्लीट करना चाहते हो, है ना, मतलब और दूसरों के सामने आप क्या करते हो, उसको ऐसे ही वे में रिप्रेजेंट करते हो कि जैसे सामने वाले का बेनिफिट है.
तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं जब कुछ ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वे में, ऐसे वे में दूसरों के सामने अपनी डिमांड्स को रखते हो, तो लोग क्या कंसीडर करते हैं इसको? वो कंसीडर करते हैं कि ये है वी से दैट दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राइट? इफ वी सी अ क्रिकेटर मैनिपुलेटिंग टू स्टे इन द टीम, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with the bosses, we say he or she is playing dirty politics. देखो कई बार आप लोग क्या फील करते हो, जैसे क्रिकेट मैनिपुलेशन हो गई, टू स्टे इन द टीम, जैसे कि आप टीम में ही रहोगे भाई, और अ फेलो स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज हिज फादर्स पोजीशन, मतलब एक क्या कर रहा है, कोई क्लास का स्टूडेंट है, फेलो स्टूडेंट है, और वो क्या कर रहा है, दूसरे बच्चे की फादर की पोजीशन को गेन करने की कोशिश कर रहा है। और अ कलीग इन ऑफिस माइंडलेसली एग्रीइंग विद द बॉस, मतलब बॉस जो बोल रहा है, यस ऑफ कोर्स बॉस यू आर राइट, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट, वो ऐसा मानने की सोचता है। तो वी से और ही और शी इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, मतलब आप क्या देखते हो कि क्योंकि ये लोग क्या बन रहे हैं, जानबूझ के ना चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता भी होगा, बट इवन देन दे विल बी ट्राइंग टू डू अग्री, दे विल बी ट्राइंग टू बी अग्री विद दोज पीपल हु आर इन द पावर। मतलब वो कहीं ना कहीं देखो, अगर बॉस की बात को आप मान रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि बॉस आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है ना? तो इसी सारी चीजों की वजह से क्या बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी पॉलिटिक्स की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? डिसइल्यूजन बाय सच परस्यूट्स ऑफ सेल्फिशनेस वी डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, है ना? इसीलिए ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो कुछ सेल्फिशनेस की चीजें हैं, हम क्या फील करते हैं कि यही है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स क्या बनी, एक नेगेटिव टर्म बन गई, है ना? समझा? आप लोगों ने सुना भी होगा, देखो वी से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। आपने टर्म्स तो बहुत बार सुनी होंगी, लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में। आप लोगों ने किसी एरिया में अगर ज्वाइन भी किया होगा, मतलब किसी न्यू एरिया में अगर आपने कहीं, तो क्या बोलते हैं आपको कि आप पॉलिटिक्स नहीं चलती है, पॉलिटिक्स ट्राई करने की, मतलब इंक्रीज करने की कोशिश मत करना, राइट? तो पॉलिटिक्स को किस वे में यूज किया जाता है? इन अ नेगेटिव टर्म। It's not only ordinary people who despair of politics, even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from the funds various political parties. क्या होता है, सिर्फ कॉमन पीपल ही परेशान नहीं होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो भी परेशान हैं, और हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ना उनको फंड्स भी देती हैं। Cinema stars also complain of politics through they seem to be adept at the game once they join in. मतलब सिनेमा के स्टार्स जो होते हैं वो भी कंप्लेन करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, है ना? हालांकि जब वो उस टाइप में कहीं ना कहीं जब आप उस एरिया में एंटर कर जाते हो, मूवी वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं, हमारे जो एक्ट्रेसेस होते हैं, इवन देन वो उस गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? इट मीन्स वी आर दस confronted with conflicting image of politics. मतलब हर के अकॉर्डिंग, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, पॉलिटिक्स अलग अलग है। आपने क्या पढ़ा, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स हो गई, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये डर्टी ट्रिक है, नथिंग मोर देन दैट, राइट? कुछ लोगों ने इसको क्या बोल दिया कि नहीं ये आप अपने आप की सेल्फिशनेस को कंप्लीट करने का मेथड हो गया, ये डर्टी ट्रिक का मेथड हो गया एक टाइप से। गेटिंग माई पॉइंट? तो सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको यही बता रही हैं कि आप एक्चुअल में पॉलिटिक्स बेनिफिशियल नहीं होती है। तो क्या एक्चुअल में पॉलिटिक्स इतनी खराब है? मतलब इन सारी की सारी चीजों को पढ़ के तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट इज बैड ओनली, राइट? वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कन्फ्लिक्टिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स. इज पॉलिटिक्स एज अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट एंड गेट रिड ऑफ? तो क्या सच में पॉलिटिक्स इतनी खराब है कि क्या हमें उससे दूरी रहना चाहिए, हमें उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए? और इज इट अ वर्थवाइल एक्टिविटी विच वी मस्ट एंगेज विद इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर वर्ल्ड? और या फिर ये ऐसी एक्टिविटी है कि आप, ये डर्टी नहीं है बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इंडल्ज होना पड़ेगा, इसमें एंगेज होना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या बनाना चाहते हो, यू वांट टू मेक अ बेटर वर्ल्ड, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू गेट मोर एंड मोर इन्वॉल्वमेंट, राइट? फाइन, समझा? अब देखो ये एक्चुअली में पॉलिटिक्स है क्या, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट यू विल बी कंफ्यूज्ड. आज आप लोगों को कहीं ना कहीं क्या समझ आया, जो मिथ्स हैं एक टाइप से पॉलिटिक्स के बारे में, कि ये कुछ नहीं है, डर्टी ट्रिक है, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें गेम्स प्ले होते हैं,
नथिंग इज बेनिफिशियल, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लोग परस्यू करते हैं, फुलफिल करते हैं, राइट? यही तो सब कुछ पढ़ा ना आपने, दैट ऑल द थिंग्स विच आर नेगेटिव. ओके, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट एक्चुअली में क्या पॉलिटिक्स सिर्फ वही है? क्या एक डर्टी ट्रिक है, या फिर इससे कुछ बढ़ के कुछ और है? That we will discuss in next video. I hope introductory part, although this book can be little bit tough for you, because all the things related to constitution you have already discussed in the previous classes, in the smaller classes, lower classes. But this thing is completely new to you. You will be able to get a lot of new things from this particular book. Try to understand it with patience and you will be able to get everything. Fine? We will meet in next video with the actual meaning of politics. Till then, revise everything, try to understand, study with it with full concentration, right? We will meet in next video. Till then, revise everything and you can enjoy also, and definitely the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.